These two people used to date. They had a 4-year romantic relationship, and now they're exes. And if they spend 30 days chained together, I will give them $250,000. How long ago did you two date? 3 years ago. She broke up with me. You're salty. I can't force you guys to do it, but once you clip on the handcuffs, the 30-day challenge has begun. I'm locked in. They're both handcuffed. from this point forward, if either of you decide to quit by crossing this red line, I will instantly unhandcuff both of you. The video is over, but either of you wins anything. have fun, you two. My ex-boyfriend? Really, Jimmy? Bro, what? What's up, dude? Hi. Can I give you a... Oh. Oh, where are we? This is your happy home for the next 30 days. This is the kitchen. You can hang out, you can work out, you have separate beds. There's a question mark door. We'll worry about that later. And most importantly, you're probably wondering, since you two are handcuffed together, how do you use the bathroom? Oh, no. Someone go in the bathroom? Stop it. I have to shower with this on? Yeah, if you take it off at any point, the video's over. Slide the handcuffs in there. Wait, you guys are cool. Boom. Hey, she needs more slack. But what if she has to use the toilet? Hey! Wait, I can't believe I'm in the same room as you right now. Yeah, and you're kind of stuck with me? Yeah. Wait, am I stuck with you? Oh gosh. Actually, Susie has been through this kind of challenge before. You see, she lasted 100 days in a room with a complete stranger. But this time, she's trapped with someone she knows a little too well. One thing to decide, do we even want to be eating together? I don't know. Okay, Josh is showering right now, so I feel like it's time to get my honest thoughts out there. I'm nervous for this challenge. We dated 4 years, we're broken up for 3, and now we're locked together in a box. At some point, someone's gonna have to start saying something. Ay, ay, ay. Jeez. Sorry. Well, you might as well leave it on now. It's the morning of day 2, and our exes are still trying to find their own rhythm. You fed me. That equals happy woman. But with this 60-foot chain, they can live their own separate lives. And that's exactly what they're choosing to do. I was picturing like if we were actually chained close together, and I was feeling a little scared. Are you scared to be close to me? She really should be, because this chain will shrink, and these two exes will be forced to confront each other. Get me out of here. You make me want to die. But for now, just living together is proving to be pretty difficult. You get wet? Uh-huh. Oh, sorry. With the disgusting pan grease all over me. Sorry. On that note, I'm gonna go lock myself away in the shower. Here's the deal. I've been pretty rough on her today. She deserves it. You broke up with me. I feel like we should talk about our problems eventually. I want to acclimate a little bit more before just yapping. It's been a few days since we've seen Jimmy in here. I'm ready for some action. Because right now, this is the vibe. Silence at all times. Things are so bad between them, I wonder if a shorter chain would bring them closer together or tear them apart. It's day 5 and time for the first offer. Happy day 5. Wait, why are you guys on opposite sides of the room? Because we can be. Well, come on over. You're coming up on a week. How's it been? It's just like, I'm getting kind of used to her being here. It's hard to even like really talk about things. Oh. Yeah. To celebrate 5 days of being chained together, you're being served a very special offer. Your chain is about to shrink no matter what. Bro. Offer number 1 is a 50-foot chain, 10 feet shorter than what you currently have. Okay. Offer number 2 is a 30-foot chain. Your current chain cut in half, and if you choose this one, we will add $25,000 to your prize pool. If you guys want to make $25,000 while sitting around in here, then you would choose this 30-foot chain. No, that's so short. If you choose this chain, you'll have to live a lot closer to each other. I mean, I was around you for 4 years for free. I mean, I can be a little closer for That's crazy. an extra 10K. Do you want your chain cut in half? I'm saying yes. I'm with it. Let's do it. Okay. Nolan, let's cut the chain in half. Oh gosh. Their chain has officially been cut in half. Good luck to the two of you. Cheers. I'm not regretful of taking more money. Well, we still have 25 days, but we also haven't really figured out that this is shorter yet. Like, we haven't bumped into the issue of it being too short yet. It'll probably happen in a very short amount of time. Oh! Like right now. Oh!
Not even 24 hours into the chain being half the length. We are already having problems. Even right now, Josh is showering while I'm sitting at the table. I would love to be on my bed right now, but the chain doesn't reach the bed anymore. At 4 a.m., got woken up by Josh to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. The chain being shorter is very uncomfortable in here. My God. 6 feet distance at all times, please. Ew! You just got your sweat all over my forehead. Hey, you gotta walk here. I'm Josh, I'm immature. My name is Susie. You're looking pretty gross. Thanks. D-bag. I think this challenge might be easier if it was with a stranger. I know you're working on it. I know you're trying your absolute best, but you're absolutely insane. You're being disrespectful to me. It's not disrespectful. You're being mean. This morning, I started with a comment, and then we kept having an issue about it. To be real, the problem with the comment was that you're like making fun of me in hopes that people would join in to also point fun at me. Bro, you're actually delusional. Susie in the psych ward. मुझे नहीं पता इस सब के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लगता है उसे तब गुस्सा आया था, पर नहीं, बस एक कमेंट है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता है कि अजीब क्या है? तुम अच्छा था। देखते हैं जॉश एक भी दिन मुझे गुस्सा दिलाए बिना रह सकता है या नहीं। कुछ कहा? तुम बोल बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और मुझे पसंद नहीं है। वो बस एक जोक था। नहीं, किसी के साथ भी वैसा करना बुरा होता है जब क्या पता कितने लोग हमें देख रहे होंगे। ओह, जैसे कि मैंने तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती कर दी। मैं अभी वैसा नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सब तुम्हारे बारे में ही है। वैसा तुम नहीं एक है। स्टार हो और मैं खामखाई हूँ। ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है, ये हम दोनों के बारे में है। जॉश ही था जिसने वैसा किया। जॉश ने मुझे गुस्सा दिलाया। ये जॉश की गलती है। तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊं। माफी मांगता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर अभी उसे सही करने का बस एक ही रास्ता है कि उसे कल पर ही भूल जाते हैं। मुझे बस 30 दिन पूरे करने और बस। और यकीनन तुम भी वही चाहती होगी। हाँ। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुश्किल है। हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हुआ है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम यहाँ सरवाइव करने आए हैं, पैसे जीतो और फिर कभी बात नहीं करेंगे। फिर शुरू करें? क्यों नहीं? और भले ही इन्होंने चैलेंज के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, मैं देखना चाहता था कि अगले चेक इन डे पर ये अपने फैसले पर डटे रहते हैं या नहीं। यह डे 10 सेलिब्रेट करने के लिए हम करने वाले हैं। ओह नहीं, तुम्हारी चेन को और 10 फीट छोटा। हे! वो भी फ्री में। पर वैसा करने से पहले जाहिर है पिछली बार चेन छोटी करने पर थोड़ी से पर्सनल इश्यूज हो गए थे। और क्योंकि आने वाले दिनों में तुम दोनों के पास होगा और पैसे जीतने का मौका अपनी चेन को और छोटा करने के बदले में, मैं सिर्फ एक बार फर्नीचर को अनबोल्ट करूंगा ताकि इसे अपने हिसाब से लगा सको और फिर इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। पर पहले तुम्हारी चेन छोटी करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? और फर्नीचर मूव करने के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सपर्ट क्रू। ठीक है। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम फर्नीचर मूव कर सकते हो। तो क्या हम शुरू करें? हाँ, संभल के। ओके। बॉयज को काम पर लगाने के बाद सूजी और जॉश ने सारे फर्नीचर को अपने आसपास के एरिया में उनसे रखवा दिया, वो भी एक खास एरिया को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा बाथरूम और ये हमारे बेड। आज रात जो हमारे पास है वो और 20 दिन के लिए रहने वाला है। ऐसे रह पाएंगे। डील में और मिठास लाने के लिए हमने इन्हें एक और सरप्राइज दे दिया। सूजी, जॉश, चैंडलर, ये रहा हमारे ब्रांड न्यू वेजिटेबल से भरा हुआ एक फ्रेश। सॉरी गाइस, हम पहली बार हमारा चॉकलेट मिल्क दिखा रहे हैं। वाह!
ये बढ़िया है। ये असली दूध से बना है और भरा हुआ है विटामिन ए, डी और पोटेशियम से। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इसका टेस्ट कमाल है। जाइए और Meet Sasta Ticket, an app designed to cater to all your travel needs. Once you log in, you फेस्टिवल्स को वॉलमार्ट, 7-Eleven और स्पीडवे से खरीदिए नेशन वाइड। ये इस चैलेंज का सबसे बेस्ट पार्ट है। चेन छोटी होने के बाद भी फर्नीचर मूव करने से जॉश और सूजी का मूड थोड़ा बेहतर हो ये गया। चेन 10 फीट छोटी हो गई है और अब तक हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है? करीब रहने की। ठीक है। भले ही उनके झगड़े शुरू ही रहे, चेन उन्हें एक्चुअली और भी पास ला रही थी और वक्त के साथ साथ वो फिर से दोस्त बन रहे थे। आज हम बहुत बोर हो गए हैं और हमने बहुत लंच ली खाया है, तो हम इसे दीवार पर एक हार्ट शेप में लगाने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे पहला लंच ली हार्ट। जॉश लेटकर जर्नल लिखना चाहता था और उसी वक्त मुझे भी ट्रेडमिल पर चलना था, तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू जॉश। हमें एक साथ यहाँ से जाने के लिए काम करना होगा। हाँ, हमें सभी चीजों को सहना ही होगा। फ्रेंड्स। पर अब जब वो और पास आ रहे थे, जॉश खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि आखिर उनकी जोड़ी साथ क्यों नहीं रह पाई। हे सूजी, बात कर सकते हैं? हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा नहीं था। तुम अलग होकर कुछ और करना चाहती थी जो कि मेरे काम से मेल नहीं खाता था। मतलब कि पहले बार बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो तुमसे शेयर करना पड़ता था हमेशा। ऑनेस्टली अगर हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है तो मैं चाहूंगी कि सिचुएशन पहले जैसी ना हो। हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुमने क्या किया? बस हर वक्त रोती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। तो हमारे ब्रेकअप के बाद क्या किया? मैं बस रोता था, मतलब फॉलो नहीं करता था, पर तुम्हारा इंस्टा हैंडल भूला भी नहीं था। हर हफ्ते उसे चेक करता था, पर अजीब था, तुम एक अनजान इंसान के जैसे देखते रहना। उतने वक्त अलग होने के बाद जैसे मेरे दिल के 2 टुकड़े हो गए हों। प्लीज रो मत। तुमसे ब्रेकअप किया तब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। शायद मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया। क्या? तो फिर अब क्या करें? शायद इस चैलेंज की वजह से मैं जॉश को नए नजरिए से देख रही हूँ। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि जो इस कमरे में होगा वो असली दुनिया में होता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। भले ही जॉश और सूजी के रिश्ते में एक बदलाव आ रहा था, ये अब भी एक 30 डे चैलेंज ही था और बाहरी दुनिया से इतना दूर रहना जॉश से सहन नहीं हो रहा था। यहाँ रहने के लिए मैंने मेरी बाहर की जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी और अब ये मुझे बहुत उबा रहा है। ब्रो, मैं 2 हफ्तों से बाहर नहीं गया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बाहर है। अगर बाहर जाने के लिए पैसे देने पड़ते तो मैं वैसा कभी नहीं करती। मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप? मुझे मेंटली सही नहीं लग रहा है। और इसी वजह से डे 15 पर हमारे पास उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन था। तो डे 15 पर हम आपको ऑफर करना चाहते हैं एक आउटडोर स्पेस। मैं तुम्हें बाहर का एरिया अनलॉक करके जगह को दुगना करने का मौका दे रहा हूँ, जिसका मतलब है जब भी तुम चाहो बाहर के यार्ड का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन शर्त ये है, अगर तुम लोगों को ये आउटडोर एरिया रखना है अपने पास तो तुम लोगों को ये 10 फुट का चेन लगाना पड़ेगा। बाहर की बहुत याद आ रही थी। शायद हम सनसेट का अच्छा व्यू देख पाएं या सनराइज का। हाँ, पर उसके लिए हम आधी चैन कुर्बान नहीं कर सकते। अगर हम बाहर जाने के लिए इस ऑफर को लेते हैं तब हम हमेशा इतने ही पास रहेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। सनराइज की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि हम इस मौके को ऐसे ही गवा दें। मैं ये सच में करना चाहता हूँ। 10 फीट की चैन और कम करना मतलब किसे पता हमारे पास और कितनी जगह होगी। तो तुम्हारे पास बात करने का बहुत वक्त था। क्या तुम डे 15 ऑफर ले रहे हो? नहीं। ठीक है, तो अंदर चले जाओ। क्या हम 1 मिनट एंजॉय कर सकते हैं? हाँ, पर 10 सेकंड्स का टाइमर लगा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ दिनों में मिलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें पछतावा है अब जो हम अंदर आ गए हैं? मुझे नहीं पता, बाहर की याद तो आती है। डे 15 ऑफर को मना करने की वजह से जॉश पर सच में बड़ा असर पड़ा और अगले दिन बाहर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आज मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है। तुम बस अभी उठे हो। सोचा था वो मिस्ट्री डोर होगा, पर नहीं। और रोज की जिंदगी में भी कुछ अलग नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा महीना है। हम सोच रहे थे कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है
और कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन इतना लंबा कैसे है? उम्मीद है वो मिस्ट्री डोर जो भी है वो कुछ अच्छा होगा। कुछ नया सोचा है कि उस कमरे में क्या हो सकता ओह है? माय गॉड, अगर उसके पीछे टेस्लास हुई तो कमाल होगा ना। और बात ये है, ये पहली बार नहीं है कि सूजी मिस्ट्री चैलेंज फेस कर रही है। पिछले वीडियो में भी उसने एक मिस्ट्री बॉक्स मिस किया था जिसमें पूरे $50,000 थे और उसकी फेवरेट कार भी टेस्ला, जिससे वो टूट गई। तो अब मैं रो दूंगी, ये सच में मेरा सपना है। उनके पास बस टेस्लास है। अगर उस डोर के पीछे टेस्लास होगी तो हमें वो करना ही होगा ताकि मुझे फिर से पछताना ना पड़े। तो कम ऑन। पर फिर भी जॉश के लिए बाहर का एरिया अनलॉक ना कर पाने का दुख कम ही नहीं हो रहा था। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे घर वापस ले जाओ। आज जॉश को दिक्कत हो रही थी और कभी कभी हमें अपने पार्टनर को संभालना पड़ता है, मदद करनी होती है जब उनका मूड ठीक नहीं होता। तो जॉश अभी सो रहा है पर आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज जॉश का मूड कुछ सही नहीं था। ये तुम्हारे लिए। ओह, तुमने बेकन और एग से एक हार्ट बनाया? हाँ। वाओ, एक हार्ट। फ्रेंडशिप। मैं सोच रहा था इसका मतलब क्या है। बेड पर कोई इस तरह ब्रेकफास्ट नहीं लाता है। जॉश सूजी के इस काम से इतना कंफ्यूज और हैरान था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने क्या किया। उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। शायद मुझे पढ़ना ही होगा। अ मैन्स गाइड टू वुमेन। जब एक मर्द और औरत एक साथ डांस करते हैं, जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तब औरत कंट्रोल में होती है, उनकी हरकतें बारीक होती हैं, तब ये इस बात का संकेत है कि वो आप में रुचि रखती है। जब जॉश सूजी की रहमदिली के पीछे की वजह के बारे में सोच रहा था, सूजी सोच रही थी कि उस मिस्ट्री डोर के पीछे क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर वहाँ एक टेस्ला होगी तो शायद हमें जिमी के लिए बनाना ब्रेड बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स। बाय। क्या? मुझे उस बुक के चैप्टर पे जाना है, मेंस गाइड टू विमेन, ताकि समझ पाऊँ कि वो क्या था। ये बुक कहती है अगर वो तुम्हें चाहती है तो ये संकेत है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, एक स्माइल, हर बार बस आपको ही देखते रहना। तो मुझे ये लगता है उसे मैं पसंद हूँ। क्या वो मेरी दी हुई रिंग है? हाँ। अब भी पहनते हो? कभी कभी पहनता हूँ। मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज फेंक नहीं पाई जो तुमने तब दी थी। पर मुझे एक चीज बेचनी पड़ी थी। मैं समझी नहीं। जब हम इस जगह से जाएंगे तब मैं बताऊंगा। शायद मैंने कभी नहीं बताया था, मैं बहुत डरा हुआ था। जब साथ थे तब की सारी चीजें उसने रखी है, सिर्फ एक छोड़कर, जिसे अब तक मुझसे छुपा रखा है। बस कह सकते हैं वो सीक्रेट होने के पीछे बड़ी वजह है। लेकिन मुझे वो सीक्रेट कुछ भी करके जानना ही है। जिसने चैलेंज के आखिर तक मुझे रोक के रखा है वो वही सीक्रेट है। यह डे 20 और वक्त हो गया है चीजों को थोड़ा सा मसालेदार बनाने का। हैप्पी डे 20। क्या हाल है? तुम्हारे सामने है वो 5 रास्ते जिससे ये मिस्ट्री डोर खोल सकते हो। ओह माय गॉश। और बात ऐसी है, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा और हर प्लेट में रही ऑफर दिखाऊंगा। अगर आप किसी ऑफर को हाँ कहते हैं तो जो भी मिस्ट्री डोर के पीछे होगा आपका हो जाएगा। अगर ना कहते हैं सिर्फ तभी अगली ऑफर बताई जाएगी। पर याद रखना, हो सकता है कि आप सबसे बेस्ट डील को ना कह दे। अरे नहीं। तुम बहुत बुरे हो। ऑप्शन नंबर 1, तुम गवाओगे $50,000। मुझे लगता है मैं इसे लूंगी क्योंकि मैं सही कहा। नर्वस हूँ। तुम्हें क्या लगता है? शायद इसे ना कहना चाहिए। ठीक है। ऑफर नंबर 2, तुम्हारी प्राइस पूल से जाएंगे $1,00,000। शायद ये आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। शायद इसे भी गिरानी चाहिए। ऑफर नंबर 3, माइनस $25,000 और तुम्हारी चेन 5 फीट की हो जाएगी। तब तुम इतने पास होगे और अब भी इस चैलेंज में 10 दिन बचे हैं। अगर ना कहते हो तो यहाँ सिर्फ 2 ऑफर्स बचेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये हाँ कहते हैं तो ये जीतेंगे जो भी इस मिस्ट्री डोर के पीछे है। फैसला लेने से पहले याद है उस पिछले वीडियो में जब तुमने मिस्ट्री बॉक्स और एक टेस्ला को ना कहा था? हाँ। क्या लगता है उस डोर के पीछे क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अपना सर जमीन पर रखो। अगर वो एक टेस्ला हुई तो मुझे बस वो डोर खोलना है। चलो इसे लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, हम इसे लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी अगली ऑफर थी माइनस $25,000 पर तुम्हारी चेन उतनी ही रहती। और फाइनल ऑफर थी फ्री। कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी चेन 5 फीट की कर दी है और पे किए हैं $25,000। अगर इसके पीछे 2 टेस्ला हुई तो टेस्ला 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 टेस्ला। तुम दोनों जीते हो ब्रांड न्यू टेस्ला। जिमी! अंदर आ जाओ।
शायद मैं रोने वाली हूँ। पता है ये एक बस कार है, लेकिन मुझे सच में बहुत खुशी ये है। पूरे $40,000 की कार है। हाँ, क्यों नहीं? ओह, संभल कर, जॉश गिर जाएगा। मेरी पहली गलती ठीक हो हाँ, गई है। सही कहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स को लॉन्च किया है, सावर स्ट्राइक गमीज। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में कमाल है। इनमें कोई आर्टिफिशियल डाइज या स्वीटनर्स नहीं है, सिर्फ क्लीन हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सपना है। सावर स्ट्राइक गमीज अभी अवेलेबल है टारगेट, 7-Eleven और स्पीडवे में, वो भी नेशन वाइड। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। लेकिन भूलना मत, ये टेस्लास एक कीमत पर आती हैं। देखते हैं बाथरूम कैसे जाते हैं। अब इनकी चेन सिर्फ 5 फीट की है। ठीक है। ठीक है, शावर में जाके देखो। ठीक है। ओह, ये चेन और छोटी नहीं हो सकती। ओह, हो सकती है। तुम्हारे लिए बनाई है फेस्टिवल्स बनाना ब्रेड। ये बढ़िया लग रहा है। पता है इसके साथ क्या पीना अच्छा होगा? एक फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क जो अभी स्क्रीन पर दिए गए सभी रिटेलर्स पर अवेलेबल है। इसका टेस्ट कमाल का है। इसमें 13 ग्राम प्रोटीन है। ये अभी स्टोर्स में है, तो फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क ट्राई कीजिए। मैं 5 दिन बाद चेन को और छोटी कर दूंगा। बढ़िया है। वाओ, चलो क्या चैंडलर, बात है। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके, आराम से आगे आ जाना। हाथ भी नहीं धो पा रही हूँ। सूजी और मैंने इस 5 फुट चेन में एक मजेदार बात सीखी। ये 5 फुट चेन बेकार है। ये 5 फीट चेन सच में बेकार है। मैं हाथ भी नहीं उठा पा हाँ, रही ये हूँ। गुस्सा दिला रही है। क्या तुम्हें अब भी बैठना था? ये 5 फीट चेन हमें एक वक्त में 2 काम नहीं करने दे रही है। शायद वो आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। Hey! मुझे चैन चाहिए। Bro! मुझे शावर लेना है। और ये मेरी नई सच्चाई। बाथरूम के बाहर सब्र से वेट करते हुए उसका दिमाग वापस उस बुक में चला गया। एक जेंटलमैन बनो, कुर्सी को खींचो। जिससे पूरा दिन उसके बर्ताव में एक फर्क देखने को मिला। दरवाजा खोलो, औरत को हर एक बात में अहमियत दो। तुम्हारी कार का नाम क्या है? वो सूजी है। डांस करने से पहले उसके हाथ को नरमी से छुओ। औरतों से खुलकर सवाल पूछो। यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। शायद फिर से हथकड़ी में बनना चाहेंगे। पर एक आखिरी चैप्टर था जो उनके जरूरी इशू पर फोकस कर रहा था। अगर तुम उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए एक डेट नहीं रखते, तब तुम तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने के रास्ते पर हो। मुझे तुम्हें मेरी छोटी छोटी उम्मीदें भी बतानी पड़ रही थी। जैसे हम 3 महीनों से डेट पर भी नहीं गए थे। मैंने उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए कोई डेट प्लान नहीं की थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या चाहती थी। शायद उसे एक डेट चाहिए। तो जब जॉश ने प्रोड्यूसर से एक डेट के बारे में अकेले में बात की, तो मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही थी। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. ओह, तुम हैंडसम लग रहे हो। हाँ, तुम भी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। यहाँ पे कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स लेके आए। तुमने अच्छा काम किया। मुझे ये कहना ही होगा, ये बहुत ही अच्छा है। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सर। मुझे ये पसंद आया। ऐसे डेट पर आना, हम इमोशनली पास आ रहे हैं फिर से। सही कहा। शायद ये डरावना है, क्योंकि जैसे हम पहले अलग हुए थे। मुझे लगता है ये सही दिशा में एक नया कदम है। निकलने के बाद एक असली डेट पर ले जा सकता हूँ। मतलब यहाँ से बाहर? हाँ, मुझे एक असली डेट पर जाना पसंद आएगा। ठीक है। हमारे फेस्टिवल्स चॉकलेट मिल्क को चीयर्स करना चाहोगी? चीयर्स। आता है। बस 3 सेकंड्स की बात है। अगर टाइमर से पहले जॉश चेन खोल देता है, तो वो पूरे $2.5 लाख और दोनों टेस्लास जीत जाएगा। टाइमर में बस 10 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कोई सब कुछ चुराता है या नहीं। क्या हाल है? ओह गॉड, मैं नर्वस हूँ। वो वक्त आ ही गया, यकीन नहीं हो रहा। सूजी, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। जॉश, ये 1.25 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, अगर कोई एक अपनी हथकड़ी नहीं उतार देता। और तुम्हें याद दिला दूं, लाई डिटेक्टर के वक्त तुमने ये सब कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से पीछे रह रही थी? हाँ, सच है। क्या तुम पूरे $2.5 लाख चुराने की सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, तुमने इस पे थोड़ा रिएक्ट किया है। 1 मिनट और 12 सेकंड्स। पैसे चुराने के लिए ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम इसे चुराओगे? वो रिवेंज होगा। ओह माय गॉश, क्या जॉश कोई खेल खेल रहा है? रुको, तुम इसे चुराओगे? 16 सेकंड्स। तुम्हें यकीन है? नहीं, ये आधे का हकदार है। शायद मैं पूरे ही ले लूंगा। 9, 8। जॉश,
ये वीडियो एयर होने के बाद क्या तुम सूजी से कुछ कहना चाहोगे? हमारा ब्रेकअप होने के बाद कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर पाया, और मैं जहाँ भी गया तुम मेरे साथ ही थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार बचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया और किसी और से प्यार भी नहीं कर पाया। बाहर जाने के बाद एक असली डेट पर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, ये एक डेट है। ठीक है। नहीं, ये मजाक कर रहा है, मुझे पता है ये मजाक कर रहा है। 3, 2, 1, टाइम पूरा हो गया। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी आजाद हो। कैसा लग रहा है? ये रहे तुम्हारे $1,25,000। सूजी, जॉश, तुमने अब आगे का क्या सोचा है? ओह, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ओके, लगता है अब ये दोनों खुश हैं। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। सब्सक्राइब